ایک ایک چیز ہم نے یعنی ناپی تولی اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ آئے ہیں. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو دیر لگی، لیکن میں شروع ادھر سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل جوائنٹ سیشن ہے. جوائنٹ سیشن کا کیا مقصد ہے؟ جوائنٹ سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری قوم یہ آج بتائے کہ ہم اکٹھے ہیں. ہم کسی قسم کی اگریشن جو ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہے اس میں کوئی ہمارے میں ڈویژنز نہیں، یہی ہم نے بتانا ہے. کل کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم کشمیریوں کے جو رائٹس ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو ایک حق دیا تھا سیکیورٹی کونسل کے اندر کہ سیلف ڈٹرمنیشن، یعنی ان کو وہ فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں شاہ محمود کو ہم نے بھیجا. ہمارے بڑے ریزرویشنز تھے، میں یہ بتا دوں. اس کے باوجود ہم نے اس لیے بھیجا کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے آل پارٹیز کانفرنس میں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہیں جہاں تک ہندوستان اور کشمیر، یہ دو ایشوز کے اوپر، ہندوستان کی اگریشن اور کشمیریوں کے جو رائٹس ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں اس پہ. اور اس لیے ہم نے شاہ محمود کو بھیجا اور شاہ محمود نے وہاں جا کے پارٹی کا موقف رکھا. گورنمنٹ کی ریزولوشن بڑی کمزور تھی، اس کو شاہ محمود اور باقی بھی اپوزیشن پارٹیز نے سمجھا کہ اس کو ایک قوم سے ایک میسج آنی چاہیے نریندر مودی کو، ہندوستان کی اگریشن کو اور کشمیر کے لوگوں کو، ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ جو ریزولوشن تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی کل. اور اس سے پہلے میں نے رائے ونڈ کے اندر اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ یہ نریندر مودی کو بھی میسج دی اور کشمیریوں کو بھی ہم نے میسج دیا، ہم ان کے ساتھ ہیں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بھی ادھر بھی بات کر دی. تو جو یہ کل کا سیشن ہے اس کا جو مقصد ہے وہ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف تو اس کے اوپر ریٹریٹ کر بیٹھی ہے، رائے ونڈ میں بھی اور آل پارٹیز کانفرنس میں بھی. آل پارٹیز کانفرنس میں ساری پارٹیز نے بیٹھ کے یہ ریزولوشن بنائی اور مجھے بڑا ہم شاہ محمود اور شیرین مزاری کو ہم خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی صحیح دیر لگا کے اور ریزولوشن ایک متفقہ بنی اور سٹرونگ بنی. اب اگلا ایشو آ گیا کہ ہم جو کل جوائنٹ سیشن میں اس میں اور کیا کریں گے جا کے. یعنی یہ ریزولوشن تو ہو گئی، ہمارا آپس میں ڈیبیٹ کی، لوگوں کا یہ اوپینین تھا کہ جوائنٹ سیشن میں جا کے یہ چیزیں کہی جائیں. لیکن ہم نے سوچا کہ اگر ہم جائیں گے جوائنٹ سیشن میں اور ہماری بڑی واضح لائن ہے نواز شریف کے اوپر، ہم اگر جوائنٹ سیشن میں جاتے ہیں تو ہم نواز شریف کو ایز پرائم منسٹر انڈورس کرتے ہیں. لیکن ہمارے خیال میں کہ نواز شریف وہ لیجٹمیسی کھو بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کی جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے، جو اخلاقی قوت ہوتی ہے، وہ پیناما کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں. اب ہم اگر جاتے ہیں اور ان کو فیصلہ تو سروں کا ہے ہمارا کشمیر اور ہندوستان پہ، اب ہم وہاں جا کے نواز شریف کو انڈورس کرتے ہیں جبکہ میں اور میری پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ حقدار نہیں ہے پرائم منسٹر رہنے کے. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر آ کے ایک وعدہ کیا آتے ساتھ ہی کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کہہ کے انہوں نے اس کو الٹا کیا، ہر چیز روکی اپنے آپ کو احتساب اپنا کروانے سے. یعنی پارلیمنٹ کے جو فورمز بھی تھے جدھر ہم جا کے بات کر سکتے تھے، مثلا ٹی او آرز کے اوپر ساری اپوزیشن متفق تھی، وہ نہیں مانے. اور اپنے ٹی او آرز جو دیے نواز شریف نے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نہیں مانے. ایک طرف کہہ رہے ہیں میں احتساب کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو ٹی او آرز اپوزیشن کہتی ہے وہ نہیں مانتے، اور جو اپنے ٹی او آرز دیتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اس سے تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا نواز شریف کا. تو احتساب بھی اپنے قانون کے ذریعے کروانا چاہتے تھے. یعنی یہ بھی کانٹرڈکشن ہے، میں احتساب کے لیے تیار ہوں لیکن وہ اس احتساب جن قانون جو میں بناؤں گا، میں فیصلہ کروں گا کس قوانین کے تحت. دوسری چیز جو سپیکر کا رویہ تھا، کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر سپیکر اس طرح ایسے نہیں کرتا. اتنا سپیکر ہمیشہ امپارشل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے. سپیکر کا رویہ آپ سب کے سامنے ہے.
नवाज शरीफ जिसका पैनामा में नाम आता है उसका केस नहीं भेजता, मेरा भेज देता है, जिसका पैनामा में नाम भी नहीं आता, जिसकी कोई नई चीज़ भी नहीं होती। और फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की एक ऐसा फोरम है जो सारों को बुलाता है, जो एहतसाब कर सकता है, सारे इदारों को बनाता है, नैब, FBI, जितने भी FIA, SCCP, स्टेट बैंक, इन इदारों को बनाता है और पूछता है कि आपने पैनामा में क्यों नहीं कुछ किया। वो इदारे वहां पैक के सामने बैठ के कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो कोई कानून ही नहीं एक्ट करने के लिए पैनामा के ऊपर। तो ये है पार्लियामेंट की हैसियत, जो पार्लियामेंट जिसने 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रोसीड करेंगे, वो नहीं किया। अब ये हमें जॉइंट सेशन पे बुला रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ नवाज शरीफ अपने आप को पैनामा से बचाने के लिए, उनकी कोशिश ये है कि ये कश्मीर का इशू यूज करके तो फिर से पैनामा के इशू पीछे रह जाए। हालांकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने 2 बातें कही कि नवाज शरीफ आप मुल्क को बजाय यूनाइट करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को यूनाइट होना चाहिए। किन चीजों पे डिवाइड कर रहे हैं? नंबर 1 पैनामा। ये PTI नहीं थी, ये सारी जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी, उन्होंने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने ये चीज इशू रेज किया कि आप पैनामा का इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे, उसकी वजह से मुल्क डिवाइडेड है। दूसरी बात उन्होंने कही कि CPEC के ऊपर छोटे सूबों को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, उससे भी मुल्क में डिवीजन आ रही है। और तीसरी चीज, ये मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर भी आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, आपने लीडरशिप नहीं दी। और नवाज शरीफ का लीडरशिप का ये हाल था कि जब वो सारा वहां शोर मचा हुआ था, यूरी के बाद जो शोर मचा हुआ था इंडिया के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक से बात हो रही थी, तो नवाज शरीफ किधर थे? लंदन के अंदर गुची में शॉपिंग कर रहे थे, जबकि उनको पाकिस्तान में आके लीडरशिप देनी चाहिए थी। तो एक तो डिविसिव भी है, और जो कि जब मुल्क पे प्रेशर पड़ा तो उनकी कोई आवाज ही नहीं आई। जब जो भी शोर मचता है, हिंदुस्तान से जो एग्रेशन आती है, यहां से जवाब जाता ही नहीं है। तो कल का जो सेशन है, हमने बड़ी डिबेट के बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। 6 महीने से इन्होंने जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर, जो सारी कौम को, पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर। सारी कौम हॉस्टेज हुई है एक इशू के ऊपर। और आप देख लें कि बाकी दुनिया के अंदर जो 2 और जमहूरियत थी, जो जमहूरी मुल्क, जिधर उनके सरबराह के पैनामा में नाम आए, तो उन्होंने फौरी तौर पे पार्लियामेंट में एक ने आके अपने आप को सफाई पेश करी और डेविड कैमरॉन ने क्लियर किया, दूसरा सफाई नहीं पेश करा और चंद दिनों के अंदर ही जब पब्लिक सड़कों पर निकली उसने रिजाइन किया। नवाज शरीफ ना रिजाइन कर रहे हैं, ना सफाई पेश कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के इदारों को फंक्शन करने दे रहे हैं। हम बॉयकॉट तब तक अब रखेंगे पार्लियामेंट की जब तक नवाज शरीफ, ये 2 ऑप्शंस अब दे रहे हैं नवाज शरीफ को, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पार्लियामेंट चलती रहती है। ये एग्जैक्टली यही आइसलैंड में हुआ था। तो सबसे आसान ऑप्शन तो ये कहते नहीं जमहूरियत को खतरा है। कोई जमहूरियत को आइसलैंड में खतरा नहीं हुआ कि उसकी जमहूरियत आगे बढ़ती गई, यानी उन्होंने रिजाइन किया आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पार्लियामेंट आगे चली गई। और जो दूसरा हमने जो आज कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, जो TORs सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं, तो या वो रिजाइन करें और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन TORs के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दें। अगर पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये 2 ऑप्शन है। जब तक ये 2 ऑप्शन नहीं है तो हम तहरीक इंसाफ इन प्रोटेस्ट कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा, हमारी जमहूरियत कमजोर कर रहा है, पार्लियामेंट को कमजोर कर रहा है, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इदारों को कमजोर कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब तक वो ये नहीं करता, हम इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। हम
पाकिस्तान सारा इकट्ठा खड़ा है पाकिस्तानी फौज के पीछे, कश्मीर इशू पे, इंडिया के ऊपर एग्रेशन पे, हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन ये जो इंटरनली मुल्क को खोखला किया जा रहा है, करप्शन से कमजोर किया जा रहा है मुल्क को, मैं नहीं समझता कि जब तक नवाज शरीफ इस तरह अपनी करप्शन बचाने के लिए इस मुल्क के इदारे तबाह करते रहेंगे, पार्लियामेंट को कमजोर करते रहेंगे, डेमोक्रेसी को कमजोर करते रहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का इतने बड़े इल्जाम के बाद ना जवाब दे रहा है और ना ही रिजाइन कर रहा है। इसलिए हमारे आज बड़ा क्लियर हमने फैसला किया है, हम अब इस पार्लियामेंट को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेंगे और इंशाल्लाह परसों मैंने अपनी सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बुलाया, इस्लामाबाद में हम मीटिंग कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे जो हमने 30 सितंबर को फैसला किया है कि अगली अब जो मार्च होगी वो इस्लामाबाद की होगी। तो वो इंशाल्लाह हमारी परसों पार्टी पूरी सारे पाकिस्तान से हमारी पार्टी आ रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन ऑफिस बेयरर्स हैं और उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह परसों बताएंगे कि इस्लामाबाद मार्च के ऊपर हमारा क्या प्लान है। ये फरमाइएगा कि बिलाशुबा आज आपने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक बड़ी खबर दी है कि आप पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग के हवाले से सवालात जरूर उठेंगे। क्या आप क्रॉस द बॉर्डर कश्मीरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू? द पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक माय पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। शाह मंसूरी साहब, क्या इससे पहले भी पार्लियामेंट में कश्मीरियों के हक में करारदादें मंजूर होती रही हैं? ये पहला मौका होगा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस करारदाद की सिग्नेटरी नहीं होगी। टाइमिंग के हवाले से फरमाइएगा। देखिए जी, एक मिनट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन पेश की गई है, मुझे बताएं उसमें से क्या चेंज होगा कल। मुझे एक चीज बता दें कि कल जब सारे जॉइंट पार्लियामेंट सेशन पे बैठेंगे कौन सी नई चीज लेके आएंगे? वो कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन है। स्वाय इसके कि हम नवाज शरीफ को वहां बैठ के इंडोर्स करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व नहीं करते, जो अपने आप को हिसाब के सामने पेश नहीं करते, जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब हम कौन सा वहां नई चीज लेके आएंगे, मुझे ये बता दें। सारी चीजें तो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हो गई है, मैंने रायगढ़ में भी कह दिया और हम फिर बार बार दोहराते रहेंगे इसको। लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या चीज होगी कि कोई हमारा कॉज कमजोर हो जाएगा मेरे कल जॉइंट सेशन पे ना जाने। सिर्फ कल ये होगा कि हम नवाज शरीफ को इंडोर्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो मैं नहीं मानता उनको। जब आप फंस जाते हैं करप्शन में, डेमोक्रेसी के अंदर, आप अपने आप को क्लियर करते हैं जिस तरह डेविड कैमरॉन ने किया। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का कल बायकॉट कर रहे हैं। साथ ही साथ 2 ऑप्शंस दिए उन्होंने हुकूमत को, एक ये कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें, कोई और नून लीगी यहाँ पर उनके ओहदे पे आ जाए, या फिर वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो इस पार्लियामेंट को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करेंगे। इमरान खान ने हतमी ऐलान कर दिया है, उनका ये कहना है कि अब वो किसी सूरत इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफा दें और खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, उनकी जगह कोई दूसरा नून लीग से ताल्लुक रखने वाला शख्स वजीर आजम का ओहदा संभाल ले। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी कि अब वो पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत नहीं करेंगे। कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होने जा रहा है, जिस पर कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए बात की जाएगी, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं होंगे। आपको बताएं कि इमरान खान ने इस मौके पर यह कहा कि अब वो इस पार्लियामेंट को इंडोर्स नहीं करेंगे। उन पर सवाल भी उठाया गया कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए अब बात होने जा रही है, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होने जा रहा है, तो क्या तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत ना करके एक गलती तो नहीं कर रही? लेकिन उन्होंने कहा कि कोई